Hello, friends. Welcome to Learn with Adi. And if you are preparing for any teaching exam, then teaching aptitude is a very important part of any teaching exam. It covers near around 50% portion in the EMRS exam, and similarly for KVS, NVS, there are around 60 questions. I am Aditya Gupta and I have cleared more than 4 to 5 teaching exams, including KVS, NVS, and I can better guide you in this part. So, here I am going to cover the notes and important 50 MCQs for the same topic. In the previous video I have covered the teacher's role, characteristic and nature, and similarly 50 MCQs for that. तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियोस को देखिए. यहाँ पे मैं सारे नोट्स शेयर करूँगा. दीज नोट्स आर बेस्ड ऑन इग्नू मटेरियल. ओके, आई हैव प्रेफर्ड इग्नू मटेरियल फॉर long time, and so these notes are from that part I'm going to cover. Let's start the video. So today our topic is understanding the learner. तो देखते हैं लर्नर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं. द फर्स्ट वन इज लर्नर एज एन इंट्रोडक्शन. यहाँ पे हम 4 to 5 यूनिट्स में इसको कवर करेंगे. द लर्नर, द लर्निंग थ्योरीज एंड द मोटिवेशन एंड इंडिविजुअल चाइल्ड, डिफरेंटली एबल चाइल्ड, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करने वाले हैं. एंड यू विल गेट MCQs ऑल्सो फॉर द सेम थिंग. So what is the meaning of learning first of all? So learning is a process by which experience causes a relatively permanent change in behavior. तो learning का मतलब अपने स्टूडेंट्स को ऐसी एक्सपीरियंसेस देना जिससे कि उनका जो बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ जाए. ठीक है, और नॉलेज, दैट्स व्हाट लर्निंग इज. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एडेप्टेशन. लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. यू ऑल नो दिस. Now, what are the characteristics of learning? So, learning is purposeful and goal directed. Okay, so the purposeful, remember. Then it's an active process, not a passive one. So, learner cannot be the passive spectator. He has to be active in the process of learning. Next, it involves experience and practice. Okay, next, it leads to behavioral change. We have seen in the definition also. It is individualized, varies with the learner. For the different learner, the pace of learning will be different. The experience that you want to give may interpreted in some other way, okay, and you may get some other results. So it is an individual process. So your design, your lesson plans should be individualized. Next, it is influenced by motivation and interest. So to promote learning, you'll have to develop the interest of the learner. You'll have to motivate him. Now, लर्नर एज एन इंडिविजुअल. सो एज एन इंडिविजुअल लर्नर की एबिलिटीज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड एंड इमोशनल मैच्योरिटी. तो ये सारी चीज़ें अलग अलग लर्नर में अलग अलग होती हैं. एबिलिटी अलग होगी, इंटरेस्ट अलग होगा, एटीट्यूड अलग होगा. तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट इज एजुकेशन मस्ट बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड इंक्लूसिव. As we want to give experience to the learner, so education should be the child center. Then only the child will get the experience. We cannot make child as a passive, okay, in the learning process. This is the important part in this. Implication for teachers. So what are the implications? Let's see. First of all, recognize the diversity in the classroom. You'll have to give the respect to the diversity that is there in your classroom. Adapt methods to suit learners' needs and active participatory approaches. So you have to follow those methods, those approaches in which the learner is active and have a participatory role. Now, what are the stages of learner's development or human development? We have to study this because we want to understand the learner. So how it gets developed, that is what we have to learn here. So in this we will study the stages. What are the stages, the age range, and the key feature of those stages. So the first one is the infancy. So in infancy, what is there in infancy? In infancy, rapid physical growth and motor development, language foundation. So 0 to 2 years infancy stage, physical जो है rapid, इसमें physical and motor development आएगा. बच्चा हाथ पैर चलाना सीखेगा, स्टेयरिंग करता है बच्चा यहाँ पे, ठीक है, और बलबलाना, और यहाँ पे बहुत जल्दी लैंग्वेज फाउंडेशन, लैंग्वेज की जो है फाउंडेशन यहीं पे डल रही है, कुछ 2-4 वर्ड बोलना सीख जाएगा. देन अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, इट गोज फ्रॉम 2 years to 6 years.
In this curiosity, imagination, socialization, if you see the child of 2 to 6 year age, they ask so many questions: why this is happening, what is this, what is that. They, I mean, diagnose, postmortem of everything they will do. So that's the there in that curiosity, imagination. Next is late childhood. Late childhood is the age between 6 to 12 years. Okay, 6 to 12 years. In this, what's there? Logical reasoning, group belongingness and moral sense. ठीक है, so logical reasoning develops, group belongingness, moral sense भी आ जाता है. Next is the adolescence. Now adolescence is between 12 to 18 years. Okay, so it starts with the puberty. Okay, आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी आती है. एंड देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव सीन इन मैनी एग्जाम्स, लाइक गिव अ वन वर्ड फॉर एडोलसेंस. सो दैट टाइम यू विल सी इन ऑप्शन चेंज. सो रिमेंबर दिस वर्ड चेंज. You, if you want to best describe the adolescence, then you can describe it by change, or it is a stage of what स्टैनली हॉल ने क्या कहा था? स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम. एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, सेड बाय स्टैनली हॉल. सम ऐसे कुछ क्योट्स होते हैं जो आपको याद धीरे धीरे हो जाएंगे, आप पढ़ते रहेंगे तो. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? इट इज़ द कंटिन्यूअस, और इन्हीं को प्रिंसिपल भी कहा जाता है ना. कॉन्टिन्यूअस, ओके, हैपन्स थ्रू आउट द लाइफ. सिक्वेंशियल, follows a predictable order like cephalocaudal and proximodistal. I'll discuss what is cephalocaudal and what is proximodistal. Cephalocaudal means सिर से पैर, okay, head to toe. This is cephalocaudal. Proximodistal means center to outside. ठीक है, जैसे सबसे पहले palm डेवलप होगी, फिर फिंगर्स डेवलप होंगी. So proximodistal goes center to outside, outwards, and this is goes from head to toe. Okay, remember this, cephalocaudal and proximodistal, बहुत पूछा जाता है ये. Next is interrelated. So what is interrelated principle? Like physical, social, emotional, different types of development are interrelated to each other. Like if one is physically good, he can be if अगर आपको फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा है तो आपकी कग्निटिव एबिलिटीज़ भी डेवलप होंगी. सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है तो कग्निटिव अच्छे से होगा, कग्निटिव अच्छे से हो रहा है तो इमोशनल अच्छे से होगा. दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू each other. So that's why interrelatedness concept is there in development. Next is unique. Each individual develop differently. Some are slow learners, some are gifted child, and some physically good, some mentally good, some emotionally good. So like unique development is unique. Okay, next, role of teacher. What is the role of teacher? You should know the developmental needs of the learner. Okay, so if you know these principles, these stages, you will better understand the need of learners. Provide age appropriate learning experiences. Like the child is in between like late childhood, 6 to 12 years. Now the logical reasoning is there, so some logical question you can take, but you can't take these question with the child if you're dealing with a child of 5 year or 4 year. Okay, so this is what you'll have to remember. Handle adolescence with empathy, guidance and sensitivity. Okay, these are characteristic of teacher also. Next, like empathy, sympathy and और भी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे. थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? बहुत सारी थ्योरीज हैं. इसमें हमें प्याजे, वी विल स्टडी अबाउट प्याजे, वाइगोस्की, एरिक्सन, कोलबर्ग, ब्रॉनफेबर्नर. We will not dig deeper into the theories. We will just study what's important for the exam. That only we will be studying in this part. So human development explains how learner grow and change physically, cognitively, emotionally, socially and morally over time. ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट सब कुछ बताता है कि कैसे लर्नर, क्या फिजिकल चेंजेस आए हैं कग्निटिव और इमोशंस में, सोशल भी, मोरली, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. Now see this. So first theory is Jean Piaget, very important. He gave the theory of cognitive development theory. Now what is the core idea of Jean Piaget? He said children are active learners who construct their knowledge through interaction with their environment. Constructivism. Okay, so Jean Piaget is the first name or the topmost name in the theory of constructivism. ठीक है,
So Jean Piaget says that child construct their knowledge through the interaction with the environment. Now let's see. He divided this cognitive development into 4 parts. What are the 4 stages? First one is the sensory motor. Sensory motor, it is 0 to 2 years. यहाँ पे की फीचर्स क्या होते हैं? लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्शंस. अपने सेंसेस और मोटर एक्शंस से बच्चा लर्न करता है. डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस. ये बहुत पूछा जाता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस इज इन विच स्टेज? सो इट इज इन द सेंसरी मोटर स्टेज. व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस? नोइंग एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन अनसीन. तो बच्चे में ये आ जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, पहले क्या होता है जब ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है तो बच्चे को लगता है जो चीज़ सामने है बस वही है. जैसे मम्मी नहीं दिख रही बच्चे को तो बच्चा रोने लगेगा कि मम्मी कहाँ चली गई. अभी बच्चे में, ठीक है ना, तो अब धीरे धीरे बच्चे में क्या डेवलप हो जाता है, इससे निकलते निकलते ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है कि ठीक है मम्मी यहाँ कहीं गई होगी, है ना, कुछ देर में आ जाएगी. सो दैट्स ऑब्जेक्ट परमानेंस. नाउ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? यूजिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस लाइक रेटल्स, टेक्सचर्स, विजुअल स्टिमुलाई यू कैन गिव टू द चाइल्ड. नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल. ये सेंसरी मोटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. द मेन इंपॉर्टेंट इज दीज 3: प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल. प्री ऑपरेशनल स्टेज देखते हैं. इट गोज फ्रॉम 2 years to 7 years. यहाँ पे बच्चे में ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है, यूज ऑफ सिम्बल एंड लैंग्वेजेस, है ना, इमेजिनेशन हाई होता है. अच्छा, ईगो सेंट्रिक स्पीच या ईगो सेंट्रिक थिंकिंग क्या होती है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ. ईगो सेंट्रिक थिंकिंग मीन्स बच्चा खुद से ही बात कर रहा होता है. दैट इज ईगो सेंट्रिक थिंकिंग. ठीक है. प्याजे बोलता है ये कोई काम की नहीं है, वाइगॉस्की बोलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा. इमोशनल इम्प्लीकेशन क्या है? यूज प्ले, स्टोरीज, पिक्चर्स, अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट. ठीक है, कोई हमें ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं देनी है बच्चे को यहाँ पे, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में नहीं होती है इस टाइम पे, 0 to 7 years. नेक्स्ट इज द थर्ड वन इज द concrete operational. In concrete operational, it goes from 7 to 11. Logical reasoning with tangible objects. Tangible means the one which we can touch. ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं उनके साथ एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, रीजनिंग डेवलप हो जाती है. अंडरस्टैंड कंजर्वेशन. तो मास का कंजर्वेशन होता है इसमें, वॉल्यूम का कंजर्वेशन होता है, ठीक है, लेंथ का कंजर्वेशन होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेंगी. रिवर्सिबिलिटी, दैट थिंग्स आर रिवर्सिबल. ओके. use experiment, concrete materials, okay, and irreversibility also comes in this stage, concrete operational. ग्रुप एक्टिविटीज़ आप करा सकते हैं. एक्सपेरिमेंट बच्चों को ज़्यादा कराना चाहिए इस स्टेज में, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, टीचिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए. फॉर्मल ऑपरेशन मीन्स आफ्टर 11 years till the you attain the adulthood. So this is what एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है. तभी हम बच्चों को, लाइक 15 साल के बच्चे को हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा देते हैं 11th क्लास में, 6, है ना, जो कि इमेजिनरी है. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक थॉट्स आने लगते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है. अब हम बच्चे को डिबेट में पार्टिसिपेट करा सकते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह दे सकते हैं, जो मतलब इमेजिनरी, जो चीज़ इमेजिन करके कुछ लिखना है अगर. तो हाइपोथेसिस बच्चे फॉर्म कर सकते हैं. हाइपोथेसिस मतलब आप कोई एक चीज़, कोई एक धारणा बनाते हैं, फिर उस धारणा को टेस्ट करते हैं. अगर वो टेस्ट होती है, वेरीफाइड हो जाती है, तो वो आगे चल के कोई थ्योरम बन जाती है, कोई लॉ बन जाती है. ठीक है, तो दैट इज हाइपोथेसिस. नो, इन शॉर्ट अगर प्याजे की बात करें तो उसने कहा है कि लर्निंग प्रोग्रेस फ्रॉम डूइंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली. सबसे पहले बच्चा करता है, फिर समझता है, फिर बाद में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी उसमें आ जाती है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. देन द नेक्स्ट थ्योरी इज ऑफ लेव वाइगॉस्की. वाइगॉस्की इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ही गेव द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, ये क्या है भाई, देखते हैं इसको. सो ये कहते हैं कि लर्निंग फर्स्ट हैपन्स सोशली. ठीक है, सोसाइटी से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, देन बिकम्स इंडिविजुअल. तो पहले एकदम से बच्चा खुद में से कुछ नहीं सीखेगा, उसको आसपास अपने अराउंड इन्वॉर्मेंट चाहिए जिससे वो देखेगा, फिर सीखेगा, फिर बाद में एक टाइम के बाद वो खुद से सीखना भी स्टार्ट करेगा. ठीक है. नाउ कल्चर, लैंग्वेज, शेप कॉग्निशन, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. की कॉन्सेप्ट क्या है इसके? सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉग्निटिव ग्रोथ डिपेंड्स ऑन डायलॉग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स. तो अगर ऐसा बच्चा जिसको आप अकेला छोड़ दो, अगर मैं वाइगॉस्की की बात करूँ तो वाइगॉस्की कहता है अगर एक बच्चे को अकेला छोड़ दो, उसके अराउंड कोई ना हो, ठीक है, तो वो कुछ नहीं सीखेगा. कहने का मतलब कौन कह रहा है? ये वाइगॉस्की कह रहा है. और एक बच्चा जिसके अराउंड भरा पूरा परिवार है, फैमिली है, सोसाइटी है, ठीक है ना,
तो अगर हम वाइगोस्की को रखें तो वाइगोस्की कह रहा है कि चाइल्ड इन न्यूक्लियर फैमिली विल लर्न लेसर देन द चाइल्ड इन अ ज्वाइंट फैमिली, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा एडल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन का टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाइगोस्की की थ्योरी है। जेड पी डी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाट इज जेड पी डी। जेड पी डी का मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अच्छा, तो ये होता क्या है, रेंज बिटवीन व्हाट लर्नर कैन डू एंड व्हाट कैन डू अलोन एंड व्हाट कैन डू विद द हेल्प, ठीक है। तो लर्नर क्या कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, ठीक है, आपने साइकिल चलाना आता है, ठीक है, आपको साइकिल चलाना आता है। अगर आपको साइकिल चलाना आता है मतलब आप स्कूटी चलाना भी सीख सकते हो, ठीक है। सो लर्निंग स्कूटी और द स्कूटर और द बाइक इज योर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ में आया। लेकिन जो बच्चा साइकिल चलाना ही नहीं सीखा वो डायरेक्टली स्कूटी कैसे चलाएगा, उसको तो हैंडल संभालना ही नहीं आता। समझ में आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। आपने अगर एक सिंपल अगर आपने सीख लिया कि ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या होते हैं, तब जाके आप जो शेप्स की प्रॉपर्टीज सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको शेप्स के बारे में ही नहीं पता है देन हाउ विल यू लर्न अबाउट देयर प्रॉपर्टीज। सो लर्निंग अबाउट प्रॉपर्टीज इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां बच्चा जाके सीख सकता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मीन्स द थिंग्स द चाइल्ड कैन लर्न, दैट इज द जोन। नेक्स्ट, अब किसी बच्चे को आप न्यूटन की रिलेटिविटी थ्योरी नहीं पढ़ा सकते आप 6 साल के बच्चे को। इट्स नॉट हिज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। नाउ व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग इज सपोर्ट। ओके, सो यू विल गिव सपोर्ट, यू विल फैसिलिटेट द चाइल्ड सो दैट ही कैन लर्न। अब आप देखो, बच्चे को साइकिल चलाना आती थी, अब वी आर गोइंग टू टीच स्कूटी और द स्कूटर। इन दैट केस आपको उसके बेसिक्स बताना पड़ेंगे, 2 दिन 3 दिन साथ रहना पड़ेगा, फिर सीख जाएगा। सो लिटिल, तो स्कैफोल्डिंग इज ऑलवेज गिवन बाय MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, और टीचर पीयर है ना, घर का कोई बड़ा भी हो सकता है। तो मोर नॉलेजेबल अदर कैन गिव द एक्सपेक्ट स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अब जिसको खुद ही नहीं आता स्कूटी चलाना वो थोड़ी सिखा देगा किसी को। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में वाइगोस्की क्या कहते हैं? द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर थिंकिंग, ठीक है, इज लैंग्वेज। सो वाइगोस्की कहता है पहले लैंग्वेज आती है फिर थिंकिंग आती है, जबकि प्याजे बोलता था थिंकिंग से लैंग्वेज आती है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है वाइगोस्की और प्याजे में, है ना। स्पीच लीड्स टू थॉट, याद रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट, टीचर्स का रोल क्या है? वाइगोस्की की थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोवाइड गाइडेड असिस्टेंट सो दैट टीचर कैन स्कैफोल्ड, ग्रुप लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग कर सकते हैं, एनकरेज डायलॉग एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़। जैसे कि वाइगोस्की कह रहा है सोशल इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा बच्चा सीखेगा, तो आपको डायलॉग और कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ बढ़ानी है। वाइगोस्की की थ्योरी को अगर समराइज करें तो लर्निंग इज सोशल, गाइडेड एंड लैंग्वेज ड्रिवन, ठीक है। तो लैंग्वेज से लर्निंग होती है, और हमारा मतलब कि हाँ, और इसमें एक और चीज़ याद रखिए कि वाइगोस्की कहता है लर्निंग से क्या होता है, डेवलपमेंट आता है, ठीक है। और प्याजे क्या कहता है, डेवलपमेंट से लर्निंग आती है। आप ऐसे इनको रिलेट कर सकते हैं। सिमिलरली एक और चीज़ याद रखिए प्याजे और वाइगोस्की के बीच में, प्याजे कहता है जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस है, स्टेज बाय स्टेज डिवाइड कर दिया है, जबकि वाइगोस्की कहता है कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, इसको हम स्टेजेस में डिवाइड नहीं कर सकते, ये ओवरलैप होता है। आप बिल्कुल ऐसे नहीं बांट सकते कि जो 6 साल तक का बच्चा है बस यहीं तक सीखेगा, जबकि प्याजे ने उसको बांट के रखा है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप याद रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट, एरिक एरिक्सन की बात कर लेते हैं। व्हाट डज ही सेज? अच्छा, एरिक एरिक्सन ने टोटल 8 स्टेजेस दिए हैं। मैंने 8 यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ 3 ही इंक्लूड किए हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है। 8 स्टेजेस हैं, वो लास्ट में मोक्ष पाने तक की बात करता है, वो आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। TAI ऐसे कुछ, फिर 8 स्टेजेस होती हैं, वो हमें सब नहीं पढ़नी है, हमें बस 3 ही पढ़नी है। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट वन? इनिशिएटिव एंड गिल्ट, ठीक है। ये सेकंड स्टेज होती है वैसे, है ना। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो क्या है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में? क्या है, 3 to 6 ईयर्स होती है। डेवलप इंडिपेंडेंस, क्यूरियोसिटी, ठीक है। प्रोवाइड चॉइसेस, आई थिंक 3rd होती है शायद ही, हाँ। नाउ सो 3 to 6 ईयर्स, डेवलप इंडिपेंडेंस, क्यूरियोसिटी, प्रोवाइड चॉइसेस, प्रेज, इनिशिएटिव, ठीक है। ये किस में होता है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में, ठीक है।
इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ये 6 to 12 ईयर्स होती है। डेवलप सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, यहाँ पे बच्चे को क्या आती है, कॉम्पिटेंस आती है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस आ जाती है, ऑटोनॉमी आ जाती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में, है ना। यहाँ पे कॉम्पिटेंस मतलब योग्यता विकसित होती है। टीचर्स को क्या करना चाहिए, ऐसे अचीवेबल टास्क ऑफर करना चाहिए। कोई आपने क्वेश्चन दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया, बच्चा उसको करके सफल हो गया तो उसमें एक योग्यता की भावना विकसित होती, सक्सेस होगा, है ना। रिकॉग्नाइज एफर्ट्स, कोई एफर्ट्स डालना है तो उस एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, व्हाट इज दिस, इट इज़ 12 to 18 ईयर्स। यहाँ पे क्या होता है, डेवलप सेल्फ आइडेंटिटी, बच्चा अपनी आइडेंटिटी विकसित करता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए एज अ टीचर, सेल्फ एक्सप्रेशन डेवलप के मौके देना चाहिए, करियर गाइडेंस वगैरह ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अगर कोई अनसॉल्व्ड क्राइसिस बच्चे में रही, लाइक वो इंडिपेंडेंस डेवलप नहीं कर पाया, कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं कर पाया, सेल्फ आइडेंटिटी विकसित नहीं कर पाया, तो इससे क्या आता है, गिल्ट आता है। गिल्ट से डिप्रेशन, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आते हैं, कन्फ्यूज़न आता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक प्रॉपर एक जो स्टेज है, उस स्टेज में जो चीज़ें उस बच्चे को मिलना चाहिए, जो चीज़, जो वर्च्यू, ये जो वर्च्यू होते हैं वो वर्च्यूज़ डेवलप होना चाहिए, ठीक है। सो टीचर कैन नर्चर कॉन्फिडेंस एंड आइडेंटिटी। अगला चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरी इज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग। सो हम 3 थ्योरी पढ़ चुके हैं अभी तक, प्याजे, वाइगोस्की एंड एरिक्सन। नाउ वी हैव टू स्टडी द कोलबर्ग्स थ्योरी। सो कोलबर्ग देव द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, इसने बात की कि मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कोर आइडिया क्या था, मोरल रीजनिंग, वाई पीपल थिंक समथिंग इज राइट और रॉन्ग। मोरलिटी इज वॉट, इफ यू नो what is right, what is wrong, then that is the morality. So deciding what is right and what is wrong is something called morality, ठीक। it develops in stages, ठीक है। so 3 stages इसने दी हैं। सबसे पहले इन 3 को भी टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना। प्री कन्वेंशनल, तो प्री कन्वेंशनल में सबसे पहली ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, ओबीडियंस पनिशमेंट में बच्चा पनिशमेंट अवॉइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट, यहाँ पे गेनिंग रिवॉर्ड्स, ठीक, कि बच्चे को अगर कुछ मिलेगा, मतलब आप कुछ अवार्ड दोगे बच्चे को, आपने कहा कि आप ये अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं एक चॉकलेट दूंगा या आपको बाइसिकल दिलाऊंगा, तो सेल्फ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए, ये कौन सी आती है, प्री कन्वेंशनल कहलाती है, ठीक है। तो पनिशमेंट, अवॉइडेंस एंड गेनिंग रिवॉर्ड, ठीक, दिस इज इन प्री कन्वेंशनल स्टेज। आई विल ओबे सो आई डोंट गेट स्कूल्डेड, ठीक है, एग्जाम्पल इसका। कन्वेंशनल स्टेज देखते हैं। कन्वेंशनल में बच्चा अच्छा दिखना चाहेगा, गुड बॉय गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट आता है, और लॉ और ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड सीक सोशल अप्रूवल, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। अगर किसी दूसरे आदमी ने आके बोल दिया आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो सोशल अप्रूवल मिल गया, गुड गर्ल गुड बॉय। रूल्स पे स्ट्रिक होता है, सोसाइटल रूल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक होता है यहाँ पे, ठीक है। कन्वेंशनल, पारंपरिक जो भी सोसाइटल रूल्स हैं उनके हिसाब से मोरालिटी डिसाइड की जाती है, ठीक है। कोई कहेगा चोरी करना गलत है तो वो गलत है, अब किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, उस पर ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें एक हेंज डायलेमा भी आता है, आपको हल्का सा बता देता हूँ मैं। हेंजिस डायलेमा में कुछ नहीं है, कोलबर्ग ने इसको यूज़ किया था। इसमें क्या था कि एक आदमी है, ठीक है, उसकी वाइफ जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी है, ठीक है। उसको एक ड्रग चाहिए, एक मेडिसिन चाहिए, है ना, जिससे उसकी जान बच सकती है। एक केमिस्ट है जिसने वो मेडिसिन इन्वेंट की है, लेकिन उसके पास एक ही मेडिसिन है, वो किसी को देना नहीं चाहता, इसके पास खरीदने के पैसे भी नहीं है। अब ये करेगा, क्या करेगा, उसकी दुकान में जाके चोरी करेगा, ठीक है, चोरी करेगा और अपनी बीवी की जान बचा लेगा। अब यहाँ पे आपको अलग अलग एज के बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया कि उसने सही किया कि नहीं किया, क्या होना चाहिए था, क्या गलत हुआ। तो हर एज पे, प्री कन्वेंशनल लेवल पे उस तरीके से आंसर मिले। कन्वेंशनल लेवल पे बच्चों ने कहा नहीं चोरी करना गलत है, उसने कितनी मेहनत से दवाई बनाई थी और आपने चोरी कर ली अपने फ़ायदे के लिए। कन्वेंशनल लेवल पे फिर मौत का मतलब, अब कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल देख लेते हैं। तो इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल एथिक्स आ जाते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, ये सारी बातें उठती हैं। फेयरनेस, इक्वलिटी फॉर ऑल, ठीक है। यहाँ पे आपकी खुद की थिंकिंग भी डेवलप होती है, आप सोसाइटी के अगेंस्ट भी चले जाते हैं, आपका एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। सो दैट इज पोस्ट कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सल एथिक्स यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। प्रिंसिपल, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। अगला है ब्रोनफर बर्नर्स थ्योरी।
व्हाट इज दिस, ही गिव द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, और इकोलॉजिकल मॉडल दिया था इन्होंने। इसके 5 पार्ट थे, जल्दी से देख लेते, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा मैंने नहीं देखा है कहीं एग्जाम्स में इसको, है ना। लर्नर डेवलप्ड इज इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल इन्वायरमेंटल सिस्टम। कौन कौन से, फर्स्ट पहला माइक्रो सिस्टम, माइक्रो मतलब इमीडिएट सराउंडिंग, इसमें क्या आता है, फैमिली, स्कूल, पीयर्स। मीजो सिस्टम, इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम्स, फैमिली, पेरेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन, यहाँ से एक अलग नया सिस्टम बना पीटीएम का, ठीक है। दिस पीटीएम विल कम अंडर मीजो सिस्टम, ठीक है। तो पेरेंट टीचर रिलेशनशिप जैसे यहाँ पे दे रखा है। देन कम्स द एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम मतलब इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, लाइक पेरेंट्स वर्क प्लेस। अब जैसे कि इससे, जैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे किसी के फादर जो हैं वो आर्मी में है, ठीक है। अब बच्चा मान के चलो भाई पढ़ रहा था, अभी मान के चलो बच्चा पढ़ रहा था यूपी में, ठीक है। अब फादर का ट्रांसफ़र हो गया कश्मीर, अब बच्चे को जाना है कश्मीर में, तो कश्मीर में जाके अब क्या हुआ, इनडायरेक्ट है, लेकिन ये इनडायरेक्टली बच्चे के डेवलपमेंट को तो अफेक्ट कर रहा है ना। यूपी से कश्मीर ट्रांसफ़र हुआ, बच्चा भी जाएगा तो उसका एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो उसके डेवलपमेंट नीड्स, लर्निंग चेंज हो जाएंगी। सो दैट्स हाउ द इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट चेंजेस द, इट कम्स अंडर एक्सो सिस्टम। पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो गया, है ना। मैक्रो सिस्टम, इसमें बड़े लेवल पे भी बात है, जैसे कल्चर, वैल्यूज़, लॉज, सोसाइटल लॉज, सोसाइटी, रिलीजन, जैसे धर्म, ठीक है। कोई बच्चा हिंदू है तो उसका एक अलग डेवलपमेंटल क्राइटेरियाज हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं। कोई मुस्लिम है तो उसके अलग हैं, क्रिश्चियन के अलग हैं। सो रिलीजन इज अ बिग सिस्टम, मैक्रो सिस्टम। देन क्रोनो सिस्टम, क्रोनो मीन्स क्रोनोलॉजी, लाइफ लाइन, ठीक है। तो टाइम एंड लाइफ चेंजेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, डाइवोर्स, पेंडेमिक, ट्रांजिशन, एक लंबे समय के दौरान, 10-20 साल के दौरान एक कोई चेंज देखने के लिए मिलता है हमें डेवलपमेंट में, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनो सिस्टम। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ ब्रोनफेन-बर्नर। टीचर्स इनसाइट क्या है, टीचर्स को ज़रूरी होगा उसको सब पता न करना चाहिए कि बच्चा किस कास्ट से है या किस रिलीजन से है। टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि अगर उसके पापा अभी अभी यूपी से ट्रांसफ़र होकर कश्मीर आए हैं तो उसको कश्मीरी नहीं आती होगी, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट योर child, your students, okay, so that's why we'll have to study these theories next। तो ये था थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की हमने बात की। अगला चलते हैं, इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इम्प्लीकेशन से आते हैं, जो आप केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन देखते हैं ना वो इम्प्लीकेशन पार्ट से ही आते हैं इन थ्योरीज के, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन आपको आना चाहिए, किसी भी चीज़ का इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट, what are the theories of motivation? So motivation explains why learner engage in or avoid learning। कोई भी चीज़ में वो engage क्यों हो या क्यों उसको avoid करे। This is what about motivation, ठीक है। तो आप motivation से बताएंगे कि आप बच्चे को किस चीज़ में engage होना है, किस में नहीं होना है। देखते हैं इसमें कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहले मैस्लो की हायरार्की नीड्स है, नीड ऑफ हायरार्की क्या है, इसका कोर आइडिया है ह्यूमन हैव हायरार्की ऑफ नीड्स, हायर मोटिव्स अपीयर ओनली आफ्टर द लोअर वंस आर रीजनेबली सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसका एक पिरामिड भी बनता है इस टाइप से, ठीक है। तो पहली 3 जो है प्राइमरी नीड्स होती हैं, फिर ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी नीड है। सबसे पहले होती है साइकोलॉजिकल नीड, फूड, स्लीप, हेल्थ, ठीक है। ये सबको चाहिए, ये होगी, इसके बाद ही दूसरे में जाएंगे। तो फूड, स्लीप, हेल्थ। नेक्स्ट सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। सिक्योरिटी होगी तो बाकी अगली चीज़ें आप सोचेंगे। देन कम्स लव एंड बिलोंगिंगनेस, थर्ड स्टेज, है ना। तो फर्स्ट 3 आर कंसिडर्ड एज द प्राइमरी नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में फूड, स्लीप एंड हेल्थ, सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेंस आएगी यहाँ पे। एस्टीम मतलब जब ये 3 हो जाएंगी तो फिर नेक्स्ट आएगा अचीवमेंट वगैरह, कुछ रिकॉग्निशन, अब मेरा नाम होना चाहिए सोसाइटी में, मैंने ये अचीव किया, IAS बनना है, ये बनना है, वो सारी चीज़ें, सब कुछ हो गया। एस्टीम, आपके पास पावर आ गई, सब हो गया। फिर आ गया रियलाइजिंग वन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर वही आपका स्पिरिचुअल जो पार्ट है वो माइंड का डेवलप होता है। लेकिन ये सब कब होता है, जब इसमें एक बहुत अच्छी मुझे कविता याद आ रही है, वो शायद आपको इसमें हेल्प करेगी, ठीक है। गोली खाकर, ठीक है, 3 लोगों के मुंह से 3 चीज़ें निकली। एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ, और एक के मुंह से निकला आलू, ठीक है। ये एक बहुत फेमस कविता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि पहले दोनों के पेट भरे हुए थे। इसका मतलब समझे आप क्या, कि ये जो आलू वाली है,
आलू मतलब भाई जिसके पेट ही नहीं है, जिसको खाना ही नहीं मिला है, वो क्या धर्म के बारे में सोचेगा, क्या उसकी राजनीतिक सोच होगी, ना कम्युनिस्ट ना सोशलिस्ट, कुछ भी नहीं होगा। पहले तो सबसे पहले खाना मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कॉल देम प्राइमरी नीड्स। बाकी रिलीजन आपका वो सब चीज़ें उसके बाद में आती हैं। आगे चलते हैं। सो दिस इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। What is the classroom implication of this? So a hungry or anxious child cannot learn effectively. तो वही चीज़ अभी मैंने बात की, अगर कोई भूखा होगा तो बाकी सब बातें नहीं करेगा वो। Teacher should create a secure, supportive, esteem building environment. अब आप यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं मिड डे मील से, ठीक है। तो मिड डे मील क्यों प्रोवाइड किया जाता है? आपको पता है सरकारी स्कूलों में जो आज भी हमारे देश में बड़े बड़े रिमोट एरियाज़ में जो स्कूल चल रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, ठीक है। उनके पास प्रॉपर उतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो आपको डेली फूड दे सकें, इसलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील चलाया, क्योंकि बच्चे को खाना भी स्कूल में ही मिलेगा। जब खाना मिलेगा तब बच्चा पढ़ने के बारे में सोचेगा। दैट्स वाई ड्यू टू दिस मिड डे मील ड्रॉप आउट रेशियो घटा है और चाइल्ड एनरोलमेंट बढ़ा है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मिड डे मील स्कीम। आगे चलते हैं। मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। व्हाट आर द थ्योरी ऑफ नीड्स मैकलेंड? अचीवमेंट, मोटिवेशन, कोर आइडिया देखते हैं इसमें। इसने 3 मेन ह्यूमन ड्राइव्स इसमें बात की है। बिहेवियर के जो 3 इंपॉर्टेंट इसमें ड्राइव्स होते हैं। सबसे पहला अचीवमेंट। बच्चे के अंदर अचीवमेंट्स की नीड होती है। डिजायर टू एक्सेल, सक्सीड, मास्टर चैलेंजेस, ठीक है ना। एग्जाम्पल, परफॉर्म मॉडरेट रिस्क, लाइक फीडबैक दो, बच्चा रिस्क भी लेता है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो नीड फॉर अचीवमेंट, क्योंकि वो कुछ अचीव करना चाहता है। नीड फॉर अफिलिएशन, जब मोटिवेशन क्यों होता है? अगर कोई बच्चा किसी ग्रुप से जुड़ना चाहता है, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहता है, तो वो ग्रुप के अकॉर्डिंग बिहेवियर करना स्टार्ट करता है। दैट्स वाज द एफिलिएशन नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है। वर्क वेल इन टीम्स, ठीक है ना। आपको अगर इंडियन टीम में शामिल होना है, फॉर एग्जाम्पल एक जनरल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, या आपकी क्लास में ही कुछ एक अच्छा ग्रुप है बच्चों का, ठीक है, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें, अब आपको उस ग्रुप का पार्ट होना है, तो आपको भी टॉपर होना पड़ेगा उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए। तो नीड फॉर अफिलिएशन, ड्यू टू दैट यू आर डूइंग द हार्ड वर्क, दिस बिकम्स अ मोटिवेशन। नाउ नीड फॉर पावर, ठीक है, डिजायर टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर्स, ठीक है। जब आप किसी ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, है ना, तो आप, है ना, तो वहाँ पे नीड ऑफ पावर की बात आती है ना। एस्पायर फॉर लीडरशिप रोल्स, ठीक है। तो आपको दिखेंगे कुछ बच्चे डोमिनेटिंग होते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे कि वो लीडर बनना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर जो है शिफ्ट करेंगे। दिस इज व्हाट नीड फॉर पावर। नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन। टीचर कैन नर्चर अचीवमेंट मोटिवेशन थ्रू अटेनेबल गोल्स, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस, ठीक। तो प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो, प्रॉपर फीडबैक दो, कुछ ऐसे अटेनेबल गोल्स दो, सो दैट नीड ऑफ अचीवमेंट एंड ऑल दिस शुड डेवलप। नेक्स्ट, हेंजबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी फॉर मोटिवेशन। क्या है? हेंजबर्ग कहता है 2 सेट हैं। फर्स्ट है हाइजीन, सेकंड है मोटिवेटर्स। हाइजीन क्या है? मेंटेनेंस। हाइजीन मतलब एक नॉर्मल लेवल मेंटेन रख के रखना, सैलरीज, पॉलिसी, सुपरविजन, ठीक है। अब प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन बट डोंट मोटिवेट। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक मिनिमम वेजेस सैलरी मिलने लगे, पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक हल्का सा मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी जॉब से सस्पेंड नहीं होना चाहते, तो आप मिनिमम काम कर रहे हैं, बस आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं, आपका ये कोई गोल नहीं है कि मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिल जाए या कुछ मिल जाए, आप बस मिनिमम स्टैंडर्ड्स फुलफिल कर रहे हैं, अपना सिलेबस टाइम पे करा दे रहे हैं और एवरेज अपनी क्लासेस टाइम पे जा रहे हैं, अब क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। तो बस आप सैलरी के लिए, सेफ्टी के लिए, पॉलिसीज़ को फॉलो करने के लिए या रूल्स को फॉलो करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? बस हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज मेंटेनेंस, ठीक है। तो पनिशमेंट अवॉइडेंस आप यहाँ पे कह सकते हैं। अगला है मोटिवेटर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चाहते हैं कि आप कुछ अचीव करें, आपको लोग जानें, आपको बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं। सो दिस कम्स अंडर मोटिवेटर्स, ठीक है। तो क्रिएट ट्रू मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको, ट्रू मोटिवेशन है। और ये हाइजीन मेंटेन करना कोई मोटिवेशन का, इसको कोई बड़ा फैक्टर नहीं कहा जाता, ये तो आप मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट। फॉर टीचर्स, जैसे कुछ बच्चे हैं बस वो नोटबुक इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं ताकि टीचर उनको डांटे ना, दैट्स इट।
वो इसलिए कंप्लीट नहीं कर रहे हैं कि नोटबुक कंप्लीट करने से वो सीखेंगे या कुछ और अलग चीज़। प्रेज अचीवमेंट्स एंड प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, नॉट जस्ट रूल्स एंड ग्रेड्स, मतलब रूल्स और ग्रेड्स पे स्टिक नहीं रहना है हमें कि रूल्स टाइम पे ही क्लास आना है, अब क्लास आके पढ़ना है कि नहीं पढ़ना वो आप ध्यान नहीं दे रहे, बस आप ये चेक कर रहे हो कि टाइम पे आया कि नहीं आया, ग्रेड्स बस देख रहे हैं, सीखा कितना उससे मतलब नहीं है। सो दैट्स जस्ट यू आर मेंटेनिंग हाइजीन, सो वी शुड नॉट फोकस ऑन हाइजीन, वी शुड गो ऑन द मोटिवेटर्स पार्ट, दैट इज व्हाट दिस थ्योरी वांट्स टू से। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये तो आप सभी जानते हैं। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से निकलने वाला, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से आने वाला, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, क्यूरियोसिटी, ये सोर्सेस हैं इसके। एग्जाम्पल, लर्न आउट ऑफ इंटरेस्ट, मैं मैथ पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, दैट्स व्हाट द इंटरनल सेटिस्फैक्शन। लर्निंग टू डीप, इससे क्या होती है, डीप लर्निंग डेवलप होती है, ठीक है, आप उसमें डिग डीपर, आप बहुत अंदर तक जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल रिवॉर्ड और प्रेशर, ठीक है, लर्न्स फॉर मार्क्स, प्रेज, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए ये काम कर जाती है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कोई काम नहीं आएगी। बच्चे को अगर आपने तारीफ़ कर दी बस वहीं पे ख़त्म है, वो काम करना बंद कर देगा उसको, ठीक है, तारीफ़ के लिए ही कर रहा था वो तो, ठीक है, मार्क्स के लिए ही कर रहा था, ठीक है, उसको आगे उसमें करियर थोड़ी बनाना था। तो दीज कम्स अंडर एक्सट्रिंसिक, ठीक है, इसको कहते हैं मास्टरी ओरिएंटेशन, है ना, कभी कभी आ जाता है। तो मास्टरी ओरिएंटेशन मतलब किसी चीज़ को मास्टर करने के लिए कि ये मुझसे अच्छी कोई नहीं कर सकता, या फिर आई एम द बेस्ट इन दिस, आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस, सो दिस इज मास्टरी ओरिएंटेशन। मास्टरी ओरिएंटेशन कम्स अंडर इंट्रिंसिक। नेक्स्ट देखते हैं टीचर्स टास्क। टीचर्स को क्यों ये समझना जरूरी है। कनेक्ट लर्निंग टू क्यूरियोसिटी एंड रियल लाइफ वैल्यूज़। अगर आप लर्निंग को क्यूरियोसिटी में से कनेक्ट नहीं करेंगे तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा ही नहीं, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन लॉन्ग टर्म के लिए रह नहीं पाएगा। सो इट कन्वर्ट्स एक्सट्रिंसिक टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब आप चीज़ों को क्यूरियोसिटी से, रियल लाइफ वैल्यूज से कनेक्ट कर देते हैं तो देन इट कन्वर्ट्स इनटू इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। फिर मोटिवेशन का ही पार्ट है रीइंफोर्समेंट पर्सपेक्टिव। रीइंफोर्समेंट के बारे में बात जो है स्किनर ने की थी, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो स्किनर ने तो रीइंफोर्समेंट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रिवॉर्ड डिजायर्ड बिहेवियर, ठीक है। तो जो स्किनर की RS थ्योरी थी, रिस्पोंडेंट देन स्टिमुलस। तो जब कुछ अच्छा बिहेवियर बच्चा करता है, फॉर एग्जाम्पल उसने किसी की हेल्प की तो आपने जाके उसको कहा गुड, वेरी गुड, है ना। सो दिस इज व्हाट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। दूसरा, उसने एक डॉगी खड़ा था, डॉगी को पत्थर मारा, ठीक है। नाउ अब आप कहेंगे क्या, वेरी बैड, है ना। तो रिमूव अनप्लीजेंट स्टिमुलस, ठीक है, आफ्टर गुड बिहेवियर, ठीक। मतलब कि अगर बिहेवियर आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप अनप्लीजेंट स्टिमुलस उसको देंगे, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक। पनिशमेंट में क्या होता है, डिक्रीज अनवांटेड। देखो पनिशमेंट तो अवॉइड ही करना है हमेशा। अगर आपसे कहा जाए कि क्या देना चाहिए, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट, है ना। तो रीइंफोर्समेंट आप पॉजिटिव दे सकते हैं, नेगेटिव दे सकते हैं, पनिशमेंट कभी नहीं दे सकते, ना पॉजिटिव पनिशमेंट दे सकते हैं ना नेगेटिव पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। सो इट डिक्रीज अनवांटेड बिहेवियर्स, ठीक है। तो आपने पिटाई कर दी, कुछ उसने गलत काम किया, सो दिस शुड नॉट बी डन। यू कैन गिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बट पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, व्हाट इज द शेड्यूल, इन्फ्लुएंस लर्निंग स्पीड एंड रिटेंशन, ठीक है। अगर कोई बच्चे ने क्वेश्चन 2 मिनट में बना लिया या 1 मिनट में बना लिया, आपने उसको प्रेज कर दिया, वेरी गुड, है ना, कुछ भी बोल दिया, सो दिस इज द रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट से क्या होता है कि लर्निंग की स्पीड बढ़ती है, रिटेंशन बढ़ता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। इम्प्लीकेशन क्या है, प्रोवाइड टाइमली फीडबैक, फीडबैक टाइम पे देना चाहिए, ये फीडबैक ही रीइंफोर्समेंट होता है। रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड्स दैट एनकरेज परसिस्टेंस। लास्ट इसमें देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझ लेते हैं। एवरी लर्नर इज यूनिक इन एबिलिटी, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, लर्निंग स्टाइल एंड बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स डेवलप करने हैं, ठीक है। IEP बनाने, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स, ठीक है। नाउ देखते हैं इसमें क्या है, फिजिकल एंड हेल्थ, ठीक है।
टाइप ऑफ डिफरेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, आईक्यू का डिफरेंस हो सकता है बच्चों में, इमोशनल एंड सोशल मैच्योरिटी अलग अलग हो सकती है बच्चों की, सोशल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट सोशल में होगा, किसी का मैथ में होगा, किसी का साइंस में होगा, लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ ऑडियो विजुअल लर्नर होंगे, है ना, एवी लर्नर, कुछ ऑडियो से बस सीख जाएंगे, कुछ होंगे काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक मतलब जो करके ही सीखते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि लर्निंग स्टाइल क्या है बच्चे की। अगर कोई बच्चा बिना किए सीखता ही नहीं है तो आपको उसके लिए टीचिंग एड लानी पड़ेगी उस हिसाब से। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड बच्चे का आपको ध्यान में रखना है, उस हिसाब से लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यू हैव टू टेक केयर दिस इन माइंड। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एक टॉपिक को 3 से 4 तरीके से पढ़ाइए अलग अलग तरीके से, ताकि सबकी जो है वो नीड्स केटर हो जाएं। प्रोवाइड रेमेडियल एंड एनरिचमेंट, अगर कोई बच्चा बहुत स्लो है तो उसको अलग से रेमेडियल क्लासेस या एनरिचमेंट मटेरियल, ठीक है। कोई गिफ्टेड है तो उसको एनरिचमेंट और ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो दैट थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। अडॉप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव की तो बात होती ही है ना, तो सबको समावेशी शिक्षा का आपको प्रयोग करना है। रिकॉग्नाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर, तो गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, उसमें 8 टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं, है ना, म्यूजिकल, काइनेस्थेटिक, इंट्रा, बहुत सारी थी उसमें, है ना। तो वो सारी आप पढ़ के उनको ध्यान में रख सकते हैं। अब इसको फटाफट टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या थ्योरी पे एक नया वीडियो बनाने की, और आप फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस सारे पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ लर्निंग, है ना। तो लर्निंग इज कंटिन्यूस पर्पसफुल एक्सपीरियंस बेस्ड इंडिविजुअलाइज डेवलपमेंट, कंटिन्यूस सिक्वेंशियल यूनिक, इंक्लूड्स फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट, ठीक है। पियाजे ने क्या कहा, कॉग्निटिव स्टेजेस दी, सेंसरी मोटर टू फॉर्मल ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर कंक्रीट, है ना, उसमें बहुत सारी उसने दी हैं। नेक्स्ट एरिक्सन ने साइकोलॉजिकल स्टेजेस की बात की, आइडेंटिटी, कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी, ये सारी चीज़ें वर्च्यूज़ बच्चे में डेवलप होना चाहिए। वाइगोस्की ने क्या कहा, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग की बात की, सोशल इंटरेक्शन की बात की, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी अच्छी लर्निंग होगी और लर्निंग से डेवलपमेंट होगा, ठीक है, L2D, है ना। और पियाजे क्या कहता है, डेवलपमेंट से लर्निंग होगी। अगला देखते हैं खोलबर्ग। खोलबर्ग क्या कहते हैं, इन्होंने मोरल रीजनिंग की स्टेजेस दी, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल, 3 टाइप की जो दी थी। मोटिवेशन में हमने देखा इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, मैस्लो की हायरार्की, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बाकी भी हमने देखी हैं, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर का रोल क्या है इन सब में, फैसिलिटेट करना, गाइड करना, स्कैफोल्ड करना और डिफरेंशिएटेड लर्निंग प्रोवाइड करना, एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना, ठीक है। सो दिस इज़ द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग लर्नर। ये हमने इसको एग्ज़ाम के हिसाब से जो है, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट्स आई हैव कवर्ड, ठीक है। अगर कुछ भी बचा है आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में लिख ली, मैं कोशिश करूँगा उसको भी इंक्लूड करने का। अब इसी टॉपिक पे बेस्ड हम 50 MCQs लगाने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने वो MCQs रखे हैं, है ना, ये सारे MCQs हैं, बट वीडियो का टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा जा रहा है, सो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दीज MCQs, है ना। स्टे कनेक्टेड, ओके, सब्सक्राइब द चैनल, like the video,